Hello, everyone. Welcome to today's episode of the Learning Podcast. I am your host Naman Shah, and if you have not done yet, so hit that follow button so you will never miss another episode of the Learning Podcast. I hope you have seen our previous videos and episodes as they were master blasters. You can learn a lot from them. If you have not seen it yet, see it now. Back to today's episode. Today, we have a special guest, Mrs. Deepika Agrawal. She is the best selling author of the book The Better Side and Harvesting Happiness. I warmly welcome you to the Learning Podcast. Thank you for being here. Thank you so much, Navan, for inviting me here. And Yes. it's been really great to come over and speak on various topics and discuss with you. And hopefully it's going to rock and help people in many ways. Yeah. So thank you so much, Naman, for inviting And me. first of all, congratulations on your book, Harvesting Happiness. Thank you so much. Yeah. So should we hop on our questions then? Yes, please. Yeah. What is your mission with your book, Harvesting Happiness? See, as the name suggests, harvesting happiness, which is the name only says that it means to spread happiness. खुशियों को उगाना, खुशियों को बढ़ाना और खुशियों को फैलाना, यही मोटिव है मेरा, यही मिशन है. And that is why I have written this book, which is Harvesting Happiness, and you can get it on Amazon also, which is the #1 best-selling book. See, happiness is a choice. It's a decision which we can make. You know, you cannot ask for it. You have to create. It's your, like, it is reaped in your own field. So it's your personal choice. And वैसे भी the ultimate goal of every human being, the ultimate one, is to be happy. Everyone wants to be happy. Nobody wants sadness or any kind of distress in life. So हम सब खुशियां बाहर ढूंढते हैं, but actually वो खुशी वो हमारी चॉइस ही है और वो हमारे अंदर से ही उगती है. उसे हम ही बना सकते हैं, हम ही उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम ही उसे हटा सकते हैं, हम ही उसे वापस ला सकते हैं. So it's completely our choice, and that is why I've kept the name of my book Harvesting Happiness, यानी खुशियों को उगाना and then फिर उसे writing के माध्यम से फैलाना. And see, this book is completely written, it is all completely based on my personal experiences as well as by observing people around me. तो मैक्सिमम लोगों में मैंने देखा कि कहीं ना कहीं वो खुशियों को ढूंढते हैं कि ऐसा करूंगी तो खुश हो जाऊंगी, वैसा मिलेगा तो खुश हो जाऊंगी, वहां जाऊंगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी, या उससे मुझे कुछ मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी. बट एक्चुअली खुशी ये नहीं है. ये सब हमारे टेम्पररी प्लेजर्स हैं जो हमें वक्त से वक्त कुछ इंसिडेंट्स, कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिससे हम एक कुछ स्पैन ऑफ टाइम के लिए हमें वो खुशी मिलती है, वो प्लेजर मिलता है. बट एक परमानेंट हैप्पीनेस वो तो हम खुद ही बनाएंगे क्योंकि वो हमारे अंदर से ही आती है. सो द मिशन ऑफ माई बुक हार्वेस्टिंग हैप्पीनेस इज टू make people aware that happiness is it can be harvested in your own field. You don't need to go in somebody else territory and search for it. ये खुद से बनाई जाएगी, खुद से बनती है, और इसे बनाने के सारे तरीके मेरे इस बुक में हैं. सो दैट इज व्हाई मैंने ये किताब लिखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लोग पहुंचे और लोग इसे पढ़ें और अपने लाइफ में उतारें. और इट हैज गॉट सॉल्यूशंस टू एवरीथिंग. और जहां हमें सॉल्यूशंस मिलने लग जाते हैं वहां खुशियां तो अपने आप ही आने लग जाती है, बिकॉज वी सी डायरेक्शंस, वी गेट द वे from where to walk, where to start. So this is the mission of my book, कि मुझे लोगों तक ये खुशियों का जो एक जरिया है ये बनना है और लोगों को बताना है कि खुशी हमारी अपनी है, ये हमारी चॉइस है, ये हमारी ही डिसीजन है. So explore your inner world and find your happiness. Yeah, this is wonderful. The mission of my book. Thank you. Yes. The next question is, what helps you to bounce back when things are going really bad? See, there are various kinds of situations that come into our life, and situations are one thing which you cannot control.
What you can control is your respond to that situation. सिचुएशन अच्छी भी होगी या बुरी भी होगी, जैसी भी होगी, आप उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि वो वैसी ही है, उसका एक वो एक नेचर में है, वो एक अपने एक जिस तरह से आपके पास आएगी वो अपने आप को नहीं बदलेगी। क्या बदलना है वो आप बदल पाएंगे अपने रिस्पॉन्ड के द्वारा। अब आप उसे पॉजिटिव लेते हैं, आप उसे नेगेटिव लेते हैं, आप उसे खुश होकर एक्सेप्ट करते हैं या फिर आप दुखी होते हैं, ये आप पर है, ये आपकी चॉइस है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, जब ऐसा कुछ सिचुएशन आता है जहां पे आपको लगता है कि दिस इज नॉट रियली वर्किंग फॉर यू और दिस इज गोइंग अगेंस्ट यू, जस्ट रिमेंबर हु यू आर। अपने आप को जानो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। क्या हम ये सब करने आए हैं कि एक छोटी छोटी सिचुएशंस आए और हम दुखी हो जाएं, हम सैड हो जाएं? अरे फेस करो, वॉट एवर इज कमिंग यू हैव टू फेस इट एंड देन मेक एनी काइंड ऑफ जजमेंट्स। हम क्या होते हैं, हम उसे फेस नहीं करना चाहते और पहले ही कई तरह के जजमेंट्स और एजम्पशंस में आ जाते हैं एंड वी स्टार्ट अज्यूमिंग थिंग्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से हम दुखी होते जाते हैं। First, you need to face the situation. You need to understand the situation. Go to the roots. Travel and understand the reason behind that situation. Why is it happening with you? Or if it has happened, how can you come out of it? You need to understand that. And once you start exploring the reason behind that, I am very sure it becomes very easy for us or for anyone. You can bounce back and again, become balanced and stable in your mind mentally. तो जब हम उससे हमारे अंदर एक फेस करने की हिम्मत आ जाती है, and when we start facing situations, we don't take it as suffering, we take it as a challenge. और जब हम उसे चैलेंज की तरह लेते हैं तो हम उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एनी काइंड ऑफ सिचुएशन एज अ चैलेंज एंड नॉट एज अ सफरिंग। तो क्या है, जब आप सफरिंग लेंगे ना तो वो वर्ड इटसेल्फ ही अपने आप में इतना नेगेटिव फीलिंग देता है, एक दुखी दुखी कर देता है हमें। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, you need to face it, you need to accept it, understand the root of the situation and then find solutions to it. और ऐसा कुछ नहीं है जहां पे सोल्यूशन नहीं होता है, हर चीज का सोल्यूशन है, वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट। सो दिस इज हाउ आई बाउंस बैक। आई सिट विद द सिचुएशन, आई एक्सप्लोर इट। अगर मुझे कुछ इमोशनली ब्रेकडाउन हो रहा है, चाहे मुझे रोना आ रहा है या मैं दुखी हो रही हूँ, तो पहले मैं उस इमोशन को फेस करती हूँ। you need to face. If you run from it, you will never get the solution. You need to face all kind of emotions you are going through, and once you face it, you end yourself with all sort of negativity, then you will find the proper solution how to come out of the situation, and this is how you can bounce back. And everything has a solution. There's nothing called problem, there's only one word, which is solution, and that is what you have to focus on. Yeah, I truly believe in that matter. It's a wonderful matter. Yes, yes. The next question is how to stay consistent to your goal. See, goal is not a one day program कि आज एक गोल बनाया and कल तक उसे हासिल कर लिया. It needs lot of hard work, patience, dedication. First of all, you really need to understand and have a very clear picture of your goal. कि what do you actually want. जब एक क्लैरिटी आ जाएगी, then you can plan up, क्योंकि कोई भी चीज एक बार में एक दिन में हासिल नहीं होती. Several days, several months और maybe years के हार्ड वर्क होते हैं जब जाकर आपको एक गोल आप हासिल कर पाते हैं. So it is very important to keep practicing. अब जैसे मेरा गोल है कि मुझे लिखना है और लोगों तक पहुंचाना है. I have written a book, I have written 2 books. That doesn't mean that I have completed with what I want. Every day I write quotes. वो writing on है, and quotes also motivational quotes, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. So this is the ultimate mission, this is the ultimate goal of my life, that I want to reach to people through my words, which can motivate them and help them in all kind of situations in life. And every day, that is why consistently you need to do a bit part from your side and keep consistently you need to practice with what you want to do. अगर आपको कहीं पे suppose
कहीं पे आपका गोल है कि कोई बहुत बड़े कॉलेज में आपको एक एडमिशन चाहिए, बट वो ऐसे ही आज आप चाह रहे हैं और कल तो आपको एडमिशन नहीं मिल जाएगी। उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू डू ऑल द रिसर्च वर्क कि क्या क्वेश्चन वहां पूछेंगे, क्या टाइप का एग्जाम होगा जिससे मैं पास हूँ और मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिले। तो यू नीड टू डू दैट प्रोसेस। सो सिमिलरली कोई भी गोल को अचीव करने के लिए यू कैनॉट जस्ट जंप टू द गोल, देयर आर लॉट ऑफ स्टेयर्स व्हिच यू हैव टू क्रॉस एंड देन ओनली कैन यू रीच। तो वो जो आते हैं स्टेयर्स, उसमें आपका हार्ड वर्क होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, आप किस तरह से अपने क्या चाहते हैं उसकी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी फोकस्ड एंड देन मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लानिंग से अगर कोई काम किया जाए तो वो गोल को अचीव करने में बहुत इजी होता है। दिन में यू हैव 24 आवर्स, एटलीस्ट शेड्यूल योर सेल्फ। वो 24 आवर्स को आप शेड्यूल करिए और उसमें से एटलीस्ट 1 आवर या मोर देन 1 आवर अगर आप दे सके तो अपने गोल के लिए रखिए, जहां पर आप उस पर वर्क कर सकें। या कोई भी चीज जो पानी होती है उसको आप जब दिल से समय देते हो और दिल से उस पर हार्ड वर्क करते हो तो वो जरूर अचीव होती है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट दिन के 24 घंटों में से एटलीस्ट मिनिमम 1 घंटे अपने उस गोल को डेडिकेट करिए। जो प्रोसेस है उस पर प्रैक्टिस करिए और फोकस करिए। सो आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। एंड you can be very consistent by practicing it daily in few parts। मतलब दिन में 1 घंटे एटलीस्ट उस गोल को आप दीजिए। इफ यू वांट टू कम फर्स्ट इन योर क्लास, अगर वो एम है, वो गोल है, तो आपको पढ़ाई करनी होगी, दिन के कुछ समय अपने पढ़ाई को देने होंगे, तभी आप उस फर्स्ट आने वाले गोल को अचीव कर पाओगे। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड थिंक एंड कि हाँ सोचने से कभी कुछ नहीं होता। It's always the hard work, dedication, and your focus which will keep you consistent. And one day, definitely, you're going to reach to your goal. Yeah, wonderful. This is practice. Yes. Yeah. The next question is how to be consistent in meditation and avoid distractions. Because we get tons of thinking when we are sitting alone in a silent place and meditating. So, how to overcome them? See, मैंने मेडिटेशन मैं पिछले 1.5 साल से कर रही हूँ। एंड शुरुआत में ऐसा लगता था when I used to sit for when I used to sit in meditation, कई तरह के सोच विचार, क्योंकि दिन में 60 to 70,000 थॉट्स हर एक इंसान के दिमाग में घूमते हैं। तो व्हेन यू मेडिटेट, स्पेशली हम ये सोचकर बैठते हैं कि मेडिटेशन मीन्स शांति, हम मतलब दुनिया से एक बार अलग होकर अपनी ही दुनिया में रहेंगे जहां पर कोई सोच कोई विचार नहीं होगा। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जब आप फर्स्ट टाइम मेडिटेशन करने बैठते हो तो कई तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, और पॉजिटिव से पॉजिटिव आ सकते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव आ सकते हैं, खराब से खराब आ सकते हैं, कुछ ऐसे भी आ सकते हैं जो आप कॉन्शियस माइंड में आप नहीं जानते हैं, और सब कॉन्शियस माइंड से ट्रैवल होके वो आपके कॉन्शियस माइंड में आकर मेडिटेशन के समय आपको दिखने लग जाता है। एंड लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट क्राइंग और इमोशनली बहुत डाउन फील करते हैं। बट लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी 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 नॉर्मल। हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि जब ये ख्याल आता है तो हम दुखी हो जाते हैं एंड दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग अस। बट नो, इट इज नॉट डिस्ट्रैक्टिंग यू। वो कहते हैं ना, जब हम घर की सफाई करते हैं तो एक बार बहुत कूड़ा निकलता है। जब हम अगर आप रेगुलर सफाई नहीं कर रहे हो अपने घर के या अपने रूम की, तो जिस दिन आप करोगे, सपोज आपने 10 डेज नहीं की, तो 11th डे इतना सारा कचरा निकलेगा ना। तो वही मेडिटेशन है कि when you are not into meditation and suddenly if you are trying to meditate, तो वो इतने दिनों का जो कचरा है वो एक बार निकल के बाहर आएगा। एंड एट दैट टाइम यू फील वेरी बैड, बहुत गंदगी लगेगी, अपने आप से घृणा आएगी, अपने आप में गंदा फीलिंग आएगा और लगेगा कि, और बहुत डिस्ट्रैक्शन भी होगा कि व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, आई एम मेडिटेटिंग, दैट मीन्स हर चीज पॉजिटिव और अच्छा होना चाहिए। मेडिटेशन लोग जनरली जोड़ते हैं शांति से, पीस से, बट वंस वो करते करते, इट्स अ प्रैक्टिस, और करते करते नाउ इज द टाइम आफ्टर 1.5 year दैट आई कैन फील दैट ऑल दैट डर्टीनेस इज गोइंग फ्रॉम मी, और वो क्लैरिटी और एक क्लियर पिक्चर मेरे अंदर आने लगे।
क्योंकि जब तक अंदर की सफाई नहीं होगी, आप सोचेंगे कि आप बिना सफा किए ही बैठ जाएंगे वापस, तो वो कचरे में तो और कचरा भरना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक आउट दैट dirtiness from you, and then you can install new things, new thoughts, which are going to be very pure, very clear, and it is going to help you out a lot. But it takes time. If you think once you start doing or twice or thrice और उसी में आपके कुछ जादू हो जाए आपके साथ, तो वैसा नहीं है. काफी डिस्ट्रैक्शन लगेगा शुरू में, काफी नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तो वो उनको आने दीजिए, क्योंकि जो आता है वही जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आने दें. Let it enter you, let it distract you, let it make you let it make you cry, let it make you travel through various emotions, sad, negative. It can happen and it will happen. So उससे accept करें, और जब वो आएंगे तभी वो धीरे धीरे आप उस पे मंथन करें, and it will definitely slowly just move away from you. जब वो धीरे धीरे खत्म होगा तो एक क्लैरिटी आएगी, एक क्लियर पिक्चर आएगी, और फिर आपको वो पीस, वो कामनेस, वो satisfaction अंदर से आपको मिलने लगेगा. And let me tell you, meditation is one practice who can, age is not a bar. उसे एक 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, एक 70 साल का बूढ़ा भी कर सकता है. बस ये है कि it has got a certain pattern, a certain method to do, which says that जो आपकी उम्र है, if I am 30, so at least minimum 30 minutes of meditation I should do. अगर उससे ज्यादा कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे कम नहीं करना है. If I am 20, then minimum 20 minutes of meditation I should do. If someone is 60, तो वो बोलेगा कि भाई 60 मिनट एक साथ कैसे करें, तो that can be done by 30 plus 30. आप 30 मिनट पहले करिए, फिर सुबह 30 मिनट कर लीजिए, शाम को 30 मिनट कर लिए, that makes 60. अगर आप 70 years हैं तो आप 40 और 20 का रेशियो में कर सकते हैं. So that is how you can divide, and you can carry on your meditation. But meditation is very, very important, and I would like to recommend to everyone that please take out some time from your daily schedule and meditate. It is very important, very, very important. Yes. Yeah, wonderful. Yeah, this question coming up is my personal favorite, and I just want its answer, because the question is, what is the secret to live a positive life? Because you are so positive that you have written 2 books on wisdom, and I'm seeing your progress. You are just spreading a lot of motivation, inspiration, happiness, harvesting happiness. So what is the secret to live a positive life? The first secret which I personally follow in my life is to accept things as they come in your life. जब हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं या अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट एवरीथिंग हैपेंस अकॉर्डिंग टू यू और व्हाट यू आर थिंकिंग द वे इट शुड हैपन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे कम. दूसरी चीज, कोई भी चीज सफरिंग नहीं होती. एवरीथिंग इज अ चैलेंज. ये सफरिंग वर्ड को हटा देना चाहिए, डिक्शनरी से ही हटा देना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज अ चैलेंज. देखो ना, जैसे ही हम सफरिंग वर्ड यूज करते हैं अपने लिए, तो एक बहुत ही डाउन वाली फीलिंग आती है. लेकिन जैसे ही हम चैलेंज उसे एक्सचेंज करके चैलेंज वर्ड उसमें लगा देते हैं, सडनली एक अपलिफ्टमेंट वाली फीलिंग आती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to see what kinds of word you are using while you are speaking. Choose your words wisely. It is very, very important when you're communicating what kind of words you are using for yourself and for anyone. So सबसे पहला चीज है acceptance. Second thing is communication. What kind of communication you're doing with yourself and with everyone around you. जब आप अपने communication में clear रहेंगे, तो आपकी लाइफ ऐसे ही स्मूथ हो जाएगी, बिकॉज यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर वर्ड्स. इट इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड thirdly, what is said for you or what is happening around you, it does not mean it is happening for you. कई बार होता है, लोग हमें अलग अलग तरह के कमेंट्स करते हैं, जजमेंट्स पास करते हैं, एंड वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट कि उसने मुझे ऐसा बोला तो कहीं मैं कुछ ऐसी तो नहीं हूँ. सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ, हु यू आर.
so that those judgments and those assumptions made by the outer world or outer people will not affect you. जब आप खुद को जानेंगे तो बाहर की दुनिया वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, इट इज हार्डली गोइंग टू मैटर. When you know yourself, you'll become positive. You don't need any judgments and any assumptions made by others, and you not believe also because you know yourself. So it is, first thing is acceptance, second thing is the usage of words, that is communication, what you're doing with yourself, the relations which you're sharing with yourself, that is very important. Love yourself. सेल्फ लव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक पॉजिटिव लाइफ अगर जीना है तो सबसे पहले आप खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करोगे तभी आप बाकी सारे लोगों को प्यार दे सकोगे. जो चीज आपके पास है आप वही तो बांट सकोगे, जो आपके पास है ही नहीं आप कैसे दोगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ एंड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, एंड ऑल्सो एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आर कमिंग टू यू इन द वे दे आर कमिंग. Don't need to change anything for anyone. Just know who you are. ये बहुत important है. And last thing which is very I think मेरे life में मैंने इसे जब से उतारा है मैं बहुत खुश हूँ. Everything that is coming or happening in my life, there is a reason behind it. अगर कुछ सिचुएशन आई, कुछ ऐसा एडवर्स सिचुएशन आई या कुछ चीज ऐसा हुआ जो आपके हिसाब से नहीं हुई, सो अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन हैज कम टू टीच यू. कुछ ना कुछ लर्निंग है उसके पीछे जो शायद अभी नहीं पता चले, कुछ महीनों बाद या कुछ दिन बाद या कुछ सालों बाद समझ में आएगा, बिकॉज एवरीथिंग दैट हैपेंस विद अस हैज अ स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड इट एंड इट कम्स विद अ लर्निंग. सो इसे हमेशा पॉजिटिव लो. स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप ब्लेमिंग. क्योंकि जब भी कुछ ऐसा चीज हमारे साथ होता है हम तुरंत कंप्लेन मोड में आ जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया. कंप्लेन एंड ब्लेम, ये सब चीज हम चालू कर देते हैं. बट नो, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग विद अस हैज अ स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड इट एंड इट हैज कम टू टीच अस मेनी लेसन्स जो लाइफ में हमें आगे बहुत काम आने वाली है. सो लर्न फ्रॉम एवरी एडवर्स सिचुएशन, एक्सेप्ट इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फंडा है लाइफ का जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखे. So these are the few points I personally follow and I have experienced it in my life, and that is why I'm so confidently sharing with you all. So अगर आप इसे कुछ ये 4-5 चीजों को अपनाएं तो I think you are going to कुछ भी नेगेटिविटी आपको छूने का हिम्मत भी नहीं कर सकते. They are all going to go away from your life. So this is how I stay very happy and very positive in my life. And I recommend everyone to follow the same. Yeah, it's truly awesome. I'll try to implement it in my life too. Yes. The next question is, can you share 1 or 2 lines of your book, which is very important and very beautiful? Sure. It will help people a lot. See, this book is very, very close to my heart. Okay. And if you open any page of the book, you will get a quote and a good explanation along with it. So any page you open, it is my personal favorite because each and every page is written through my self experience. So every page is very, very close to me. Every quote is very, very close to me. So 1 or 2 quotes I'm going to read, and I'm opening it randomly. Okay, whatever comes I'm going to share with you. Okay. If you want to lift the world outside you, you first need to love the world inside you. अगर आपको बाहर की दुनिया में, suppose if you want to help people in, suppose आप कोई भी तरीके से किसी को भी help करना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, बाहर की दुनिया में कुछ uplift करना चाह रहे हैं, चाहे वो humanity हो, चाहे वो लोगों में जागरूकता हो, चाहे आप मोटिवेट करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले अपने आप के अंदर वाली जो दुनिया है उसको आप अपलिफ्ट करो. जब आप अपने आप को अपलिफ्ट करोगे तभी आप बाहर के लोगों को या बाहर की दुनिया को अपलिफ्ट कर पाओगे. उसकी एक पूरी एक्सप्लेनेशन भी इस कोट के साथ मैंने लिखी है, विच अगर रीडर्स खरीदेंगे इसे तो उन्हें पूरी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी. एंड one more quote I'm going to read.
रियल पीपल गेट रियल रिजल्ट्स, ये मेरा बहुत ही क्लोज है, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आवर ऑथेंटिसिटी। आप कितने ऑथेंटिक हो, जो रियल होते हैं, जो अपने आप से ऑनेस्टी के साथ जीते हैं, अपने आप में ऑनेस्ट होते हैं, उन्हें हमेशा ऑनेस्ट रिजल्ट ही मिलता है. So it is very important to be very real to yourself. So real people get real results. So you will always get real results if you are real to yourself. इसकी भी पूरी explanation है, जो किताब खरीदेगा उसे सब कुछ मिलेगा, because each and every page is like full of wisdom, I think. So this is really going to help everyone, and I guarantee that. Yeah, truly awesome. Yeah. The Thank next you. question is 3 quick life lessons you want to share from your life experience. एक मेरा कोट है which is very I really like it personally, that we all are learners and we all are teachers. हम सब कहीं ना कहीं लर्न करते हैं, और कहीं ना कहीं लोग भी हमें देखकर सीखते हैं. तो मैं एक लर्नर भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, और यहाँ पे इस दुनिया में जो इंसान है, हर एक इंसान एक लर्नर है और एक टीचर है. चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, हम उससे भी लर्न करते हैं, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा हो, हम उससे भी लर्न करते हैं. सो पीपल ग्रो थ्रू पीपल. इंसान इंसान से एक्सपैंड करता है, एक समझ, एक सोच, क्योंकि जब वो देखता है तो वो सीखता है. सो never be arrogant that I know everything, because knowledge has no limits, it is unlimited. So एक लेसन मुझे लाइफ की जो सबसे अच्छी लगती है कि people grow through people and we all are learners and teachers. So एक दूसरे को सिखाएं और एक दूसरे से सीखें, तब आप एक बैलेंस मेंटेन कर सकेंगे लाइफ में. एंड सेकेंडली लेसन जो मैंने सीखा है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम माई बॉडी वॉज वेरी लेथार्जिक, आई वॉज वेरी फैट. तो फिजिकली मैं बहुत अनफिट रहती थी, काफी तरह की बीमारियां रहती थी मुझे. बट जैसे ही मैंने अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट किया, उसे नर्चर करना स्टार्ट किया, मैंने देखा फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी मैं बहुत ग्रो करने लगी. सो मैं बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, फिजिकल और मेंटल वेलनेस को. हर एक इंसान को एटलीस्ट दिन के 1 घंटे निकालने चाहिए अपने फिजिकल बॉडी को नर्चर करने के लिए, which is going to help you mentally also, to grow mentally also. So physical और mental health को nurture करना is very important. And thirdly, तीसरा लेसन जो बहुत लाइफ में जगह जगह पे हमें काम आता है, कि हमें एक बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए. कि अगर कोई भी चीज है, एक हम अगर प्रपोर्शन में करेंगे तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है. We really need to understand how to maintain a balance. Situations come, but how you balance yourself in that situation. या तो आप सिचुएशन में डीमोटिवेट हो सकते हैं, या पीछे हट सकते हैं, या बैकअप कर सकते हैं, या फिर आप उसी सिचुएशन को अपने आप को एक बैलेंस करके एक समझदारी से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं. तो मैंने बैलेंसिंग सीखी है लाइफ में, कि इफ आई गेट इट्स ओके, एंड इफ आई डोंट गेट इट, हाउ टू रिप्लेस दैट, वो जो ब्लैंक स्पेस है उसे रिप्लेस करके मुझे क्या करना है जिससे मुझे कभी भी खालीपन नहीं लगे. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट वी ऑल आर लर्नर्स, वी ऑल आर टीचर्स. सेकेंड लेसन विच आई हैव लर्नड इज फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस. उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. एंड थर्ड lesson which I have learned is how to balance yourself in various situations. You really need to learn this. तो ये 3 lessons हैं जो मैंने सीखा है, और मैं उसे फॉलो भी करती हूँ, और मुझे बहुत काम आती है मेरे लाइफ में. Yeah, I hope my audience will get a help a lot from these learnings. The next question and the last These question are all is my personal. okay. And the next and the last question is a message for our audience, for the learning podcast community. Which I firmly believe in, that we all need to be very, very kind with each other, very humble and very generous. जब हम एक दूसरे के साथ वो काइंडनेस वाली फीलिंग से ग्रीट करते हैं, या अपने नेचर में एक काइंडनेस वाली चीज को इंस्टॉल करते हैं, हर इंसान के प्रति आपको प्यार आने लग जाएगा. You start loving everyone you meet. So you really need to understand,
एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, देन ओनली कैन यू बी काइंड. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है एक हर इंसान में जो होनी चाहिए इज दैट हैबिट ऑफ काइंडनेस. वो काइंडनेस होनी बहुत बहुत जरूरी है. और एक चीज और जो मैं बिलीव करती हूँ वो है हेल्प पीपल एज मच एज यू कैन. if you are a writer, suppose I am a writer, I am through my writings in directly or indirectly I am trying to help people. और जो काफी लोगों को ये मोटिवेशन मिलता है तो उन्हें लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस में बड़ा काम आ रहा है एंड दे आर अप्लाइंग इट एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन वेरी पॉजिटिवली. तो कहीं ना कहीं मैं हेल्प कर रही हूँ. वैसे ही जिसके पास जो स्किल है उससे मुझे लगता है यूज करके लोगों को हेल्प करना चाहिए. So two things I firmly believe is be kind and be very, very helpful. Yeah, that's truly right. और पॉजिटिव रहना तो हमारे हाथ में है because happiness is your choice, your decision. अगर आप खुश रहना जानते हो तो you in every field of your life you're going to prosper. You are going to prosper. There is no stop. Nothing can stop you on being the way you want to be. It's just that what are your thoughts and what are your actions that you take in your life. It is very, very important. Yeah, awesome. This is what I follow. So let's end today's episode of the Learning Podcast with a positive statement. One of the best lessons you can learn in life is to master how to remain calm. Being calm is a superpower. Bruce Lee. Thanks a lot for answering these questions and for being in this episode of the Learning Podcast. It is an honor to have you here. Thanks a lot. Thank you so much, Naman, for inviting me to your podcast and making me a guest. And hopefully I'll, through this interview, I'm going to reach to many people and help them out to come out of various situations in which maybe they are stuck in life. And once again, this is a book for everyone who can, purchase it on Amazon and make and harvest happiness in their lives. This is going to help to all of you. And once again, thank you so much, Naman, for having me here. And it has been a pleasure talking to you. Thank you. Welcome and thank you too. So I'll see you in the next episode. Follow me on Instagram, subscribe my YouTube channel, Naman Shah. Links are in description. Stay learning with the Learning Podcast and stay smiling with Naman Shah. See ya.